This is All India Radio, the news read by Subhadra Ramachandran. As the number of COVID cases is on the rise, we appeal to our listeners to take all precautions and all those above 18 years of age to get vaccinated without any hesitation. Stay safe and protected by following these 3 simple steps. Wear a face mask, maintain 2 gaz ki duri for social distancing, focus on hand and face hygiene. And now the news. Prime Minister Narendra Modi has directed officials of the central government to work in close coordination with the states to ensure that the poor get the benefits of free food grains without any issues. He virtually chaired a meeting to review the functioning of different empowered groups yesterday. The empowered group on economic and welfare measures made a presentation to the Prime Minister on the steps taken, such as extension of PM Garib Kalyan Anna Yojana. It was discussed that portability enabled due to One Nation, One Ration Card initiative has helped benefit more people. The insurance scheme for frontline health workers has been extended for another 6 months. Prime Minister said that steps should be taken to expedite the settlement of pending insurance claims so that the dependents of the deceased are able to avail of benefits in time. The empowered group on issues relating to facilitating supply chain and logistics management gave a presentation on various advisories relating to measures to be taken to contain the pandemic. The Prime Minister instructed officials to plan holistically to ensure seamless movement of goods so that supply chain disruptions are avoided. The empowered group on coordinating with private sector, NGOs and international organizations briefed the Prime Minister on how the government is working in active partnership with them. The Prime Minister asked the officials to explore how volunteers from civil society can be utilized to lessen the pressure on the healthcare sector by invoking them in non-specialized tasks. It was discussed that NGOs could help to establish and maintain lines of communication between the patients, their dependents, and the healthcare personnel. The Prime Minister said that ex-servicemen could be encouraged to handle call centers for communicating with people under home quarantine. AIIMS Director Randeep Guleria has stressed that misuse of drugs must be avoided to effectively deal with the cases of COVID-19. In a media briefing in New Delhi yesterday, Dr. Guleria suggested measures for the treatment of patients with mild asymptomatic diseases in home isolation. He said if the fever is not controlled with the maximum doses of paracetamol 4 times a day, then it is advised to consult a physician. He also advised to do warm water gargles or take steam inhalation twice a day. अगर आपका बुखार जो है वो पैरासिटामोल जो हम कहते हैं कि आप 650 मिलीग्राम दिन में 4 दफा ले सकते हैं उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आप दूसरी कोई दवाई जिससे बुखार कम हो सकता है जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे नेप्रोक्सोन है या इब्यूजेसिक है उस टाइप की दवाई भी ले सकते हो जिससे आपका बुखार कम हो जाए क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं तो ये कहते हैं कि पैरासिटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा अभी भी 101 102 पे है तो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाई थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आइवरमेक्टिन जो एक दवाई है वो रोज 1 गोली ले सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए इस दवाई की रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन डिस्कशन जो नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की मीटिंग में हुआ था जिन्होंने सारा डेटा एवेल्युएट करके ये पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है और इसलिए ये होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं. On the use of remdesivir, Dr. Guleria said it must be administered in the hospital on the advice of medical professional. He cautioned people to avoid administration of remdesivir at home as it can be harmful. He advised people to seek medical support in the case of difficulty in breathing, dip in oxygen saturation below 94 on room air, and persistent pain in the chest. He said there is no need for testing after the home isolation period is over. रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम आइसोलेशन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है उससे नुकसान भी हो जाता है इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है 94 से कम हो रही है 90 के पास आ रही है या आपको सांस चढ़ रहा है आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें वो बहुत जरूरी है जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा.
The centre has waived off import duty on vital diagnostic kits and reagents used in COVID-19 related diagnosis for the next 6 months. The decision has been taken to supplement testing efforts. The exemption has been given till 31st of October this year. The first batch of the Russian COVID-19 vaccine Sputnik V is scheduled to arrive in India today. The Russian vaccine's arrival is expected to boost India's efforts in ramping up its capacity to vaccinate more people. Railway has waived off charges for COVID-19 testing and diet supply during COVID-19 related hospitalization for non-railway patients. Railway Ministry said government is following whole of government approach where all ministries and departments are working as one to prevent and fight the spread of COVID-19 infection. The ministry said Railways has been at the forefront of fighting the COVID and waiving off key medical charges. It is a step towards making the healthcare accessible for all. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on Twitter at AIR News Alerts. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. In Uttar Pradesh, the first phase of vaccination for people in the age group of 18 to 44 will start today in 7 districts that have more than 9,000 active COVID-19 cases. It will be extended to other cities later on. Additional Chief Secretary Health Amit Mohan Prasad informed yesterday the COVID-19 vaccination drive will start in Lucknow, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Gorakhpur, Meerut and Bareilly. The vaccination drive for people above 45 years of age will continue as usual at 6,000 vaccine centers across the state. The 3-day corona curfew began in the state last evening. It will continue till 7 a.m. on Tuesday. In the national capital, Delhi, a total of 27,047 new confirmed cases of coronavirus infection have been reported during the last 24 hours, taking the total number of cases to over 11,49,000. The Delhi government said over 10 lakh people affected with COVID-19 have been cured so far. In the last 24 hours, 25,288 people recovered and 375 deaths were reported in the city. The death toll so far in the national capital stood at 16,147. Presently, the total number of active cases of COVID-19 in Delhi is 99,361. Haryana government has imposed weekend lockdown in following 9 state districts of the state: Panchkula, Gurugram, Faridabad, Sonipat, Rohtak, Karnal, Hisar, Sirsa and Fatehabad, considering the need of taking effective measures to prevent the spread of COVID virus. As per the orders issued by the Chief Secretary, the weekend lockdown came into force from 10 p.m. yesterday till 5 a.m. on May 3rd, that's Monday. He said that the movement of persons tasked with law and order, emergencies in municipal services, government offices tasked with COVID-19 related duties will be allowed on production of identity cards. Furthermore, there shall be no curbs on those engaged in manufacture of essential goods. There shall be no curbs on movement of essential and non-essential goods. Ruling out a complete lockdown for now, Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh yesterday directed the DCs of the 6 worst affected districts to further tighten the micro-containment strategy and ensure 100% testing. Chief Minister was chairing a virtual emergency meeting to review the COVID situation in the 6 worst hit districts of Ludhiana, SAS Nagar, Mohali, Jalandhar, Bhatinda, Patiala and Amritsar. Captain Amrinder said that lockdown is not a solution as it will lead to exodus of the labourers and force them to go to states with even lesser medical facilities. He directed the district administration to strictly enforce all restrictions and to stop dine-in facilities in all high positivity areas. He also stressed on COVID testing of staff in restaurants by the health department. In the Union Territory of Jammu and Kashmir, all the 20 districts are under complete lockdown since last evening. The strict restrictions will continue till 7 a.m. on Monday. And that is the end of this news bulletin.
ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बिना किसी दिक्कत के निशुल्क खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबित बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि मृतक के आश्रित समय पर लाभ उठा सकें। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सामान की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र योजना बनाएं ताकि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बचा जा सके। श्री मोदी ने अधिकारियों से ये पता लगाने के लिए कहा कि नागरिक समाज के स्वयंसेवकों का उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि उन्हें गैर विशिष्ट कार्यों में शामिल करके स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों को घरों में क्वारंटीन लोगों से संवाद करने के लिए कॉल सेंटर को संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और अब तक कोविन पोर्टल पर 2,66,00,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस चरण में केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु पर पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू हो रहा है। राज्य के उन ऐसे 7 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा जहां 9,000 से अधिक संक्रमितों का उपचार चल रहा है। बाद में यह अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण सामान्य रूप से राज्य के 6,000 केंद्रों में जारी रहेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में कल शाम से 3 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। गुजरात सरकार आज से राज्य के 10 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज गुजरात के स्थापना दिन के अवसर पर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान का प्रारंभ करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुरू में यह अभियान जहां संक्रमण ज्यादा है ऐसे 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस चरण में स्थल पर पंजीकरण की सुविधा नहीं है। जिन 10 जिलों में आज से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए टीके लगाए जाएंगे, इसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर,
જુનાગઢ, જામનગર, कच्छ, મહેસાણા, ભરૂચ और गांधीनगर जिले शामिल है। गुजरात सरकार ने टीके की 2 करोड़ 50 लाख डोज के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें से 3 लाख डोज हवाई मार्ग से कल रात अहमदाबाद पहुंच गए हैं। राज्य सरकार ने उन्हीं लोगों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा है जिन्हें टीका लगाने के लिए आने का मोबाइल SMS द्वारा संदेश मिलता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आज से टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। ये शुरुआत ऐसे दिन हो रही है जब आज ही 61वां महाराष्ट्र दिवस भी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल विभिन्न सामाजिक संवाद माध्यमों से राज्य की जनता को संबोधित करते हुए बताया कि इस विशेष आयु वर्ग में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए 12 करोड़ वैक्सीन खुराक की आवश्यकता होगी। हालांकि टीकों की कमी के कारण टीकाकरण अभियान तभी चलाया जाएगा जब राज्य सरकार के पास टीकों का स्टॉक उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि राज्य को मई महीने के लिए केंद्र से 18 लाख टीके मिलेंगे। श्री ठाकरे ने टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ न करने का आग्रह करते हुए लोगों से कहा कि अराजकता न फैलाएं। उन्होंने दावा किया कि टीकाकरण अभियान में महाराष्ट्र सबसे आगे है। राज्य में 1 करोड़ 58 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डिजाइन किए गए ऐप को केंद्र सरकार के केंद्रीकृत ऐप के साथ जोड़ा जाएगा। श्री ठाकरे ने विपक्षी दलों के अपने आलोचकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेता राज्य में लॉकडाउन की तरह के सख्त प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने ये प्रतिबंध नहीं लगाए होते तो कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या अब तक 9-10 लाख हो गई होती। उन्होंने कहा कि कोविड की कड़ी को तोड़ने के लिए सरकारी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य है। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 5,500 कोविड देखभाल केंद्र हैं। इसके साथ ही 86,000 ऑक्सीजन बेड के अलावा बिस्तरों की क्षमता भी 4 लाख से अधिक हो गई है। श्री ठाकरे ने कहा कि आज महाराष्ट्र में 11,713 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा राज्य को प्रतिदिन 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है, जबकि उसे केंद्र से 35,000 इंजेक्शन मिल रहे हैं। देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 15 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 94 लाख से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लिया है। 62 लाख से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों ने दूसरी खुराक ली है, जबकि 1 करोड़ 25 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं ने पहली और 68 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं ने दूसरी खुराक ली है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जुटी हुई है। सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आने वाली है। रूस के इस टीके से अधिक लोगों को टीका लगाने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में कल शाम से पूर्ण लॉकडाउन लागू है। ये कड़े प्रतिबंध सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगे। इस बीच 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान 15 मई तक टाल दिया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त अटल डूलो ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में टीके की आपूर्ति होने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू होगा।
आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर को 34 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज नई दिल्ली में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।